پاک فوج کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، 24 خارجی جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخارج سے تھا۔ ضلع اورنگزئی میں شدید فائرنگ کا تبادلہ، 14 خارجی ہلاک۔ ضلع خیبر میں سیکورٹی فورسز کی ایک اور کامیاب کارروائی، مزید 10 خارجی ہلاک۔ علاقے میں دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کا 2 طرفہ تجارت $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے ورکنگ ایکشن پلان مرتب کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت میرزیایوف نے دستاویز پر دستخط کیے۔ پاکستان ازبکستان کے درمیان تعاون کے 29 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ تجارت، انٹر ریجنل فورم کے قیام، دفاع، موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ سمیت دوسرے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ لاہور کی فضا بو کاٹا سے گونجنے لگی، آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ بچے بڑے سب چھتوں پر موجود، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ پورے شہر میں جشن کا سماں، فضاؤں میں بسنت کا جنون، بازاروں میں عوام کا رش، شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ لاہور میں 2 دہائیوں بعد بسنت میلہ سج گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پتنگ اڑا کر فیسٹیول کا آغاز کیا۔ زندہ دلانے لاہور نے SOPs کے مطابق گڈیاں اڑانا شروع کر دیں۔ لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ تینوں دن شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ، بسز، میٹرو بس، اورنج لائن میٹرو ٹرین اور رکشا بلا معاوضہ دستیاب ہوں گے۔ لاہور میں 25 سال بعد 3 روزہ بسنت کی بہار۔ زندہ دلانے لاہور کا شکریہ، بسنت کی خوشیاں منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بسنت پنجاب کا ثقافتی ورثہ ہے، ہمیں اپنی ثقافت پر ناز ہے۔ بائک کے بجائے ہر روٹ پر مفت ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ عوام کے مفت آمد و رفت کے لیے 419 بسیں تینوں دن میسر۔ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مقررہ سائز اور سٹینڈرڈ کے مطابق پتنگے اور ڈور استعمال کریں۔ پولیس، ٹریفک وارڈن، انتظامیہ اور دیگر ادارے آپ کی مدد کے لیے موجود، بھرپور تعاون کیجیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق تحقیق کو فروغ دینا ضروری ہے۔ آنے والی نسل کے لیے محفوظ پاکستان دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ چین نے جدید تحقیق کے بلبوتے پر ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پا لیا۔ چینی نوجوانوں نے جدید انوائرمنٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ماحول کو محفوظ بنایا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے کے لیے نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ میڈیکل کی معیاری تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ آبادی میں ہر سال 62 لاکھ اضافہ، ملکی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے بنیادی مراکز صحت کو فعال بنانا ہوگا۔ مضبوط ہیلتھ کیئر نظام بھی بیماریوں سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز نے ہمیشہ دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ جمہوریت ہی مسائل کا بہتر حل ہے۔ سیاسی رواداری اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ضروری۔ ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت میں اضافہ، مقامی حکومتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پختہ سیاسی عزم ضروری ہے۔
पार्लियामेंट की मजबूती दर हकीकत जमहूरियत की मजबूती की जमानत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मकबूजा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में माएँ अपने बच्चों का इंतजार करती हैं जो कभी वापस ही नहीं लौटते। भारत के गैर कानूनी कब्जे की वजह से तालीम, सेहत और समाजी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में समाजी तरक्की को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरा। बदनाम दहशतगर्द गिरोह ने हथियार डाल दिए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। मिराज खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। गिरोह माजी में डकैती, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्वस रहा। सरेंडर के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जमा कराया गया। मिराज खान चक्रानी का शिद्दत पसंदों के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का ऐलान। बलूचिस्तान में पायदार ज़राई तरक्की और किसानों की माशी खुशहाली की समत अहम पेशरफ्त। अस्करी बैंक ने GCI के साथ बलूचिस्तान में ज़राई तरक्की के लिए तस्वीराती ताउन का आगाज़ कर दिया। किसानों को 3 अरब रुपए की बिलासूद ज़राई फाइनेंसिंग की फरहमी। ज़राई फार्मिंग और नॉन फार्म सरगर्मियों के लिए माली सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये इश्तराक बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए पहला अहम कदम और सूबे की माशी तरक्की का मुअस्सिर ज़रिया होगा। GCI के CEO शाइनिंग इंडिया के दावे बेनकाब। दिल्ली से रोजाना दर्जनों अफराद लापता। हिंदुस्तान टाइम्स ने रियासती मशीनरी की नाकामी का पोल खोल दिया। जनवरी 2026 में दिल्ली से 807 अफराद, जिनमें 509 खवातीन और 191 बच्चे लापता हुए। गुज़िश्ता साल दिल्ली से 24,000 से ज्यादा अफराद लापता, 60% से ज्यादा खवातीन। भारत आलमी सतह पर रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार। जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा। नाअहल मोदी हुकूमत अवामी तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। तवज्जो इंतहा पसंदी और इक़्तिदार मजबूत करने पर। बढ़ता तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामाली रियासती नाकामी का वाज़ेह सबूत। तज्ज़ियाकार। अमेरिका और ईरान के सीनियर हुकाम के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के सिलसिले में ओमान में आज मुलाकात हो रही है। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और अमेरिका की नुमाइंदा खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। ये बातचीत ईरान में गुज़िश्ता माह मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौज की तश्कील के बाद हो रही है। इलाकाई सालिसों ने कशीदगी कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क का बायस बन सकती है। ईरान का अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम और दीगर मसाइल पर मुज़ाकरात से कबल बाहमी एहतराम पर जोर। ईरान सिफारतकारी के मैदान में दाखिल हो रहा है, अपने हुकूक पर साबित कदम है और नेक नियति के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान तमाम वादों को पूरा होना चाहिए। मसावी हैसियत, बाहमी एहतराम और बाहमी मफादात मुआहदे के लिए नागुज़ीर और इसके बुनियादी सुतून हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। चीन का ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक़ की हिमायत का ऐलान। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करते हैं। चीन पाबंदियों के निफाज से ईरान पर दबाव डालने की भी मुखालफत करता है। ईरान के जौहरी मसले के मुनासिब हल को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा लियोबिन ने बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू की। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल से हो रहा है। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। इवेंट में बेहतरीन आगाज के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने कोलंबो में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान के ग्रुप में नमीबिया, नीदरलैंड्स, अमरीका और भारत शामिल। गेम ऑन है। PTV स्पोर्ट्स एक बार फिर नाजरीन के लिए ला रहा है क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन तस्वीर और तबसरे। ICC T20 वर्ल्ड कप की कवरेज मजीद खास
पी टीवी स्पोर्ट्स ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों और माहिरीन का एक ताकतवर पैनल तश्कील दे दिया। विंटर ओलंपिक्स 2026 की इफ्तिताही तकरीब आज इटली में हो रही है। इफ्तिताही तकरीब में माहौल दोस्त थीम को नुमायां किया जाएगा। रीसाइक्लिंग की अहमियत उजागर करने के साथ लाइट शो और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज शामिल। सरमाई खेलों में दुनिया भर से हजारों खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मिलानो कोर्टिना 2026 सरमाई ओलंपिक्स की ओलंपिक मशल का इटली में सफर तकरीबन मुकम्मल। 2 माह के दौरान 12,000 किलोमीटर का तवील सफर करने के बाद मशल आज मिलान पहुंच रही है। ओलंपिक शोले का सफर मिलान के सान सिरो स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब के साथ मुकम्मल होगा। अतालवी सफर के दौरान 10,000 से ज्यादा मशल बरदार तारीखी इमारतों और सड़कों पर दौड़ते नजर आए। मिलानो कोर्टिना सरमाई ओलंपिक्स का कर्लिंग मैच से आगाज। मिक्स डबल्स में कनाडा ने जमहूरिया चेक को 10-5 से शिकस्त दी। मैच के दौरान मजबूत हिकमत अमली, दुरुस्त शॉट्स और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा। शायकीन के लिए कर्लिंग का यह मुकाबला सनसनीखेज और तकनीकी हुस्न की बेहतरीन मिसाल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के असला और अक्सई खैबर में खारजियों की मौजूदगी की इतला पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 24 खारजियों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला और अक्सई में की गई, जहां पर शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दूसरा ऑपरेशन जिला खैबर में किया गया, जहां फोर्सेज ने मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए मजीद 10 खारजियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि ये तमाम दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे, जो मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कार्रवाइयाँ विफाकी एपिक्स कमेटी के मंजूर करदा विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हैं। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द की मौजूदगी के खात्मे के लिए सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ताहाल जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में 24 खारिज को हलाक करना अहम कामयाबी है। बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने औरंगज़ेब और खैबर के असला में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 24 खारजियों को जहन्नम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की पजीराई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म में मुझ समेत पूरी अपनी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में अमन के क़याम की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां नताइज हासिल होना शुरू हो गए हैं। इलाके के बदनाम दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासर ने रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चक्रानी ने अपने 25 साथियों समेत सरेंडर करते हुए भारी मिकदार में असला और गोला बारूद जमा करा दिया। सरेंडर करने वाला ये ग्रोह माजी में डकैती, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम में मुलविस रहा। अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब साबित हो रही हैं। मीरा खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना की मौसर हिकमत अमली के बायस बलूचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासर भी जल्द रियासत के सामने सरनगू होने की तवक्को है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उज़्बेकिस्तान के वक्त ने मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत का मुआयना किया। फरीक़ैन ने शराकतदारी को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया।
वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तहकीक को फ़रोग़ को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि हम तहकीक के ज़रिए ही माहौल को महफूज बनाने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजी शोबे और आलमी इदारे पाकिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। चीन ने जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी अपनाकर माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नौजवानों का किरदार अहम है और हुकूमत इस हवाले से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेडिकल के शोबे में मेयारी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि सेहत किसी भी मुआशरे में बुनियादी अहमियत रखती है। कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी में हर साल 62 लाख का इजाफा हो रहा है और हम सालाना न्यूजीलैंड के बराबर आबादी पैदा कर रहे हैं जिससे मुल्की वसाइल पर शदीद दबाव पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना नागुज़ीर है। हस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फ़ाल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाने में डॉक्टर्स का किरदार कलीदी है जो हकीकी मानों में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि डॉक्टर्स की मेहनत से ही आवाम को मयारी इलाज मुमकिन है और दुनिया में पाकिस्तान अपने काबिल डॉक्टर्स की वजह से पहचाना जाता है जिन्होंने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने से मजबूत होती है। सवाल पूछने से जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती बल्कि इससे लोगों में ईवानों पर एतमाद बढ़ता है। लोगों को वो जमहूरियत काबिल कबूल है जिससे उनके मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 21वें माए कराची नुमाइश से खिताब करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान का माली और तिजारती मरकज़ है जो मुल्की पैदावार का 25% और सिंध की मईशत का 90% हिस्सा फ्राहम करता है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से शहर में अमन व अमान बेहतर हुआ है और सिक्योरिटी एक मुसलसल अमल है। वज़ीर आला सिंध ने ताजिर बिरादरी के किरदार को सराहते हुए कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफे, सनती तरक्की और निजी शोबे के साथ शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करे। बाद में वज़ीर आला सिंध ने माए कराची नुमाइश का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती के इजहार का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में समाजी तरक्की से मुतालिक दरपेश चैलेंज से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में लोग मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में माएँ अपने बच्चों का इंतजार करती हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। भारत के गैर कानूनी कब्जे की वजह से तालीम, सेहत और समाजी ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर है। कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। Ladies and gentlemen, Kashmir Solidarity Day, a day of deep significance for the people of Kashmir and Pakistan. On this day, we reaffirm our unwavering solidarity with the people of Jammu and Kashmir and renew our determination to ensure that their suffering and sacrifice are remembered, and are also renew our pledge to support their just struggle for self-determination and freedom from occupation. With the presence of nearly 900,000 Indian occupation forces in Jammu and Kashmir, civilian life has been subjected to extraordinary militarization. Enforced disappearances, extrajudicial killings, arbitrary detentions, and pervasive impunity have left families fractured and communities traumatized. These practices have inflicted deep psychological scars, eroded trust, and damaged the social fabric of the Kashmiri society. The people of Palestine continue to endure similar grave social and humanitarian consequences arising from prolonged occupation, recurrent violence, displacement, and the destruction of entire civilian infrastructure, such as in Gaza. Their experience, like that of the Kashmiri people, underscores the devastating impact of occupation on human dignity and social progress.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی حملہ کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے خطے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بڑے امریکی بیڑے کی موجودگی کا پھر تذکرہ کیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کے ملک نے متعدد بیرونی فائلوں سے نمٹنے میں وہ کچھ حاصل کیا جسے حیران کن آپریشنز کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں B-2 بمبار طیاروں کے استعمال اور اپنی انتظامیہ کی جانب سے ان میں سے 21 نئے جدید ترین بمبار طیاروں کی سفارش کا ذکر کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ان کا ملک تاریخ کی بے مثال فوجی طاقت کا حامل ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جسے اپنے علاقائی اور بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں شروع ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں شریک ہیں۔ امریکی وفد میں مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور دیگر شامل ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کا کہنا ہے کہ ایران جوہری مذاکرات میں پورے اختیار کے ساتھ منصفانہ، باہمی طور پر قابل قبول اور باوقار مفاہمت تک پہنچنے کے مقصد سے شریک ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ ایران جوہری مذاکرات آج ہی ترکیہ میں شیڈول تھے، جس کے بعد ایران کی جانب سے مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی پروگرام اور دیگر مسائل پر مذاکرات سے قبل باہمی احترام پر زور دیا ہے۔ مذاکرات سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران سفارتکاری کے میدان میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایران اپنے حقوق پر ثابت قدم ہے اور ہم نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران تمام وعدوں کو پورا ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لکھا کہ مساوی حیثیت، باہمی احترام اور باہمی مفادات معاہدے کے لیے ناگزیر اور اس کے بنیادی ستون ہیں۔ چین نے ایران کے پرامن جوہری استعمال کے حق کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ لیو بن نے بیجنگ میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پابندیوں کے نفاذ سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے ملاقات میں مزید کہا کہ ایران کے جوہری مسئلے کی مناسب حل کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں سینٹ میں موجود ہمارے نمائندے ارسلان اسد سے۔ ارسلان اسد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں سینٹ میں موجود ہمارے نمائندے ارسلان اسد سے۔ ارسلان اسد، سینٹ میں متفقہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا اور باقی جو اراکین اظہار خیال کر رہے ہیں اس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی، سینٹ نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ قرارداد جو ہے وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے پیش کی، جس میں 5 فروری 2019 کے بھارتی متنازع فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ سینٹ آف پاکستان اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ بھارتی یک طرفہ غیر قانونی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ سینٹ نے اپنے قواعد و ضوابط کے رول 166 میں ترمیم کی منظوری دی۔ یہ ترمیم عوامی پٹیشن سے متعلق ہے۔ ترمیم سینیٹر عبدالقادر نے پیش کی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا ثناءاللہ نے موقف اختیار کیا کہ ترمیم سے متعلق وزیر قانون کا موقف سن لیا جائے، تاہم صدر نشین نے ایوان سے رائے لینے کے بعد ترمیم منظور کر لی۔ اس سے پہلے وقفہ سوالات میں وزیر مملکت ڈاکٹر مختار بھرت نے بتایا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سالانہ فیس کے ساتھ سالانہ فیس 18,90,000 روپے مقرر کرنے پر اتفاق طے پا چکا ہے۔ اس سے زیادہ فیس اگر کوئی میڈیکل کالج وصول کرے گا تو اس سے پہلے پی ایم ڈی سی کو وضاحت دینی پڑے گی۔ اس اجلاس میں آج سینیٹر اسد قاسم نے ہب چوکی جو ہے اس میں بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کو طویل قطاروں کی وجہ سے درپیش مشکلات کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا، جس پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بتایا کہ رینجرز ایکٹ جوائنٹ چیک پوسٹ کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں سے اس ہب چوکی سے جو ہے یہ راستہ ہے، یہاں سے اینٹی سمگلنگ اور اسلحے کی غیر قانونی ترسیل ہوتی ہے، جس کو چیک کیا جاتا ہے۔ صدر نشین نے یہ معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ جی
सर, आप सेनेट इजलास के हवाले से आज मंजूर होने वाली करारदाद और मुख्तलिफ जो बिल्स पेश किए गए हैं, तरमीम पेश की गई हैं, उससे आगाह कर रहे थे। नाअहल मोदी की करप्ट सरकार में रोजाना दर्जनों मर्दों खवातीन लापता होना शाइनिंग इंडिया के मज़हक़ा खेज़ दावों पर स्याह दाग है। हिंदुत्व के ज़ेर असर हुकूमत अवामी मसाइल से लाताल्लुक तवज्जो सिर्फ इंतहा पसंदी से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज़ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रियासती मशीनरी की नाकामी का पोल खोल दिया। जनवरी 2026 के पहले 15 रोज़ में भारतीय दारकूमत दिल्ली से 509 खवातीन समेत 807 अफराद लापता हुए। लापता होने वालों में 191 कम उम्र बच्चे भी शामिल। दिल्ली खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने मजीद कहा है कि गुज़िश्ता बरस भी दिल्ली से 24,500 से ज़्यादा अफराद लापता हुए, जिनमें 60% से ज़्यादा खवातीन शामिल हैं। भारत को जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात के सबब गुज़िश्ता बरसों में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी करार दिया जा चुका है। बैन-अ-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक नाअहल मोदी हुकूमत के खित्ते पर हुक्मरानी के गैर हकीकी दावे भारत में खवातीन और कमज़ोर तबकात के खिलाफ बढ़ते जराइम ने मज़हक़ा खेज़ साबित कर दिए हैं। तज्ज़ियाकारों की राय में भारत में बढ़ता तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामाली रियासती निगरानी और इदारा जाती नाकामी का वाज़ेह सबूत है। अफगान तालिबान रजीम अवाम के जानमाल को लाहक खतरात को पसे-पुश्त डालकर खित्ते में दहशत गर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। बारूदी सुरंगों के खात्मे के लिए तालिबान के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान में इमदादी मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें जानलेवा खतरा बन गईं। मुतासरीन की शरह दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद के मुतासरीन में 80% बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 33 लाख अफगान शहरी धमाका खेज और बारूदी सुरंगों वाले इलाकों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माइन एक्शन सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता साल बारूदी सुरंगों के फटने के दर्ज किए गए 471 वाक़यात में 314 बच्चे शामिल हैं। कोर कमांडर मुल्तान की गाजी यूनिवर्सिटी, डीजी खान मेडिकल कॉलेज और मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी डीजी खान के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कोर कमांडर मुल्तान का कहना था कि दो कौमी नजरिया हमारी कौमी वहदत की बुनियाद है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब है। कोर कमांडर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद और कौम की भरपूर हिमायत से हासिल होने वाली कामयाबी को उजागर किया। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर फ़ख्र का इज़हार किया। शुरका की जानिब से नौजवानों की फ़िक्री और कौमी रहनुमाई में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा गया। शुरका ने मुस्तकबिल में भी इस नौइयत की आगाही और रहनुमाई पर मबनी नशिस्तों के इनेकाद की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों की तवानाई, मादनियात, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साज़गार माहौल फराहम करेगी। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के जरिए ज़रई सहूलतकारी और पायदार तरक्की के इक़दाम जारी हैं। ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव बलूचिस्तान में ज़रई तरक्की और किसानों के बहबूद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। अस्करी बैंक ने GCI के साथ बलूचिस्तान में ज़रई तरक्की के लिए तस्वीराती ताउन का आगाज़ कर दिया है। ज़रई सरगर्मियों में इजाफे के लिए बलूचिस्तान के किसानों को 3 अरब रुपए की बिलासूद ज़रई फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए ज़रई फार्मिंग और नॉन फार्म सरगर्मियों के लिए माली सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्करी बैंक के सदर और CEO ज़िया एजाज का कहना है कि ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के साथ ये ताउन बलूचिस्तान के महरूम किसानों की मदद और खुशहाली के अज़्म की अक्कास है। GCI के CEO के मुताबिक ये इश्तराक बलूचिस्तान के ज़रई शोबे के लिए पहला अहम कदम और सूबे की माशी तरक्की का मौसर ज़रिया होगा। SIFC के ताउन से बलूचिस्तान में ज़रई तरक्की का ये नया बाब माशी खुद किफ़ालत की जानिब अहम पेशरफ्त है। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी से मुतासरा खानदान की पाक फौज की फौरी इमदाद पर तारीफ करते हुए कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान की हालिया बर्बरियत के दौरान पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए मैदान में डटी रही। नौशकी से ताल्लुक़ रखने वाली मुतासरा लड़की ने पाक फौज की जुर्रत और कुर्बानी को सराहते हुए कहा कि रात के 4 बजे बलोची लिबास पहने 2 दहशतगर्दों ने हम पर हमला किया और मेरे पूरे खानदान को निशाना बनाया। पाक फौज ने बर वक्त पहुँच कर हमारी हिफाजत की। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया, जहाँ हमें बेहतरीन निगहदाश्त फराहम की जा रही है। गवादर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जख्मी खातून ने अपने बयान में कहा कि पाक फौज के जवानों ने मुझे बाहिफाजत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया और मेरा बहुत ख्याल रखा।
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात को शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत होनई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया। रूस का शहर क्रास्नोयार्स्क दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रहा। चौथे नंबर पर चीन का शहर वुहान रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारतीय शहर दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। छठे नंबर पर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया अब्दुल कदीर। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब और जिक्र कर लेते हैं बसंत का। लाहौर शहर में 25 साल बाद बसंत की बहाली जिंदा दलाने लाहौर बसंत के पहले रोज़ बिल्कुल महफूज तरीके से जारी सारी रही है। बसंत के पहले रोज़ लाहौर शहर में क्या मसरूफियात हैं शहरियों की और जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे नवीद हयात अंदरून लाहौर में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी है, जोशो खरोश लोगों का कैसा है? जी बिल्कुल, 25 साल बाद बसंत का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और गुज़श्ता रात जो बसंत की चांद रात थी उसको बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदा दिलाने लाहौर ने मनाया है और अपने इन भरपूर जो लम्हात थे उनको महफूज किया है। और मैं इस वक्त अंदरून शहर की एक हवेली में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता रात उन्होंने इस बसंत फेस्टिवल को किस अंदाज से मनाया है और वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी मैडम, बताइएगा कि बसंत फेस्टिवल जो है 25 साल बाद दोबारा हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये 18 साल बाद तो हम ये बसंत देख रहे हैं और हम चूँकि पहले भी बसंतें मनाते रहे, हम यूज्ड टू थे। और ये जी सीएम जो है हमारी, उनका एक बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है, हम पंजाबियों के लिए, खासतौर पे लाहौरियों के लिए। तो उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें ये चांस दिया है कि हम इस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकें, इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इस सेलिब्रेशन में हमें ख्याल भी रखना है कि आपने ये जो तंदी वाली, शीशे वाली, मांझे वाली वो जो सारी डोरी होती है केमिकल वाली, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। इस तरह से ये होगा कि जो खुशियों भरा, रंगों भरा त्यौहार है, ये खुशियों से भरा ही रहना चाहिए। इसको कोई ऐसा काम करके आप दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस ना बने और अपने लिए भी परेशानी का बायस ना। हमें जो है एटलीस्ट ये मौका दिया है कि हम जो है वो भरपूर तरीके से पंजाबी खुल डुल के मनाएं बसंत। और टूरिज्म को भी आपको पता है प्रमोशन होगा, बहुत से लोग आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से भी आए हुए हैं, तो बहुत ही जनाब मज़ा आ रहा है। और SOPs को प्लीज़ फॉलो करें ताकि अगेन एंड अगेन हमारे पास जो है इस तरह के इवेंट्स आते रहें। अपनी छतों पर बंदोबस्त किया था, वो उनका जोश जो था वो नज़र आ रहा था और लाहौरियों ने एक बार फिर बसंत को जिंदा कर दिया। और अगर अच्छे तरीके से, मेरी आई विश के अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से ये इवेंट गुजरे ताकि अगले साल हम इसको मज़ीद अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का भी यही कहना है कि इस बसंत फेस्टिवल को जो है इस दौरान जो है तमाम हिफाजती इंतजामात और जो SOPs हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जी शुक्रिया नवीद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बसंत के रंग जिंदा दिलाने लाहौर के संग लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत का मेला सज गया। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज किया। SOPs के मुताबिक गुड्डियां उड़ाना शुरू कर दी गई। लाहौर की फिजा बोकाटा से गूंजने लगी, आसमान पर पतंगों की बहार है। बच्चे बड़े सब छतों पर मौजूद, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। पूरे शहर में जश्न का समा, फिजाओं में बसंत का जुनून, लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाजारों में आवाम का रश, शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी है। तीनों दिन शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट, बसेस, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और रिक्शे बिला मुआवजा दस्तयाब होंगे। हमारे नुमाइंदे सुफियान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लाहौरी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुफियान से हम बाद में बात करेंगे, चूंकि जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है और बसंत बड़े भरपूर जोश व खरोश के साथ अब मनाई जा रही है। तारे 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 बसंत बहार आई, बसंत बहार आई, आज खुशियां मनावन सारे बसंत
ਬੱਗੀਆਂ 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 ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और इरशाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि बसंत महज त्यौहार नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली और आलमी शराकतदारी की नवीद है। बसंत के मौके पर पैगाम में उन्होंने कहा कि लाहौर का बसंत मुल्क की माशी, सकाफती और समाजी तरक्की की तैयारी की अलामत है। आसमान पर उड़ती पतंगें पाकिस्तान की तरक्की की नई उड़ान की गम्माज़ हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि ये त्यौहार कौमी उम्मीद, तख्लीक की सलाहियत और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करता है। बसंत पाकिस्तान की दुनिया से रब्त और अपनी रिवायात के अहया का पैगाम है। हम पुरुम्मीद, पुरजोश और बुलंद हौसले के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हैं। लाहौर शहर में 25 साल बाद बसंत की बहाली, जिंदा दिलाने लाहौर बसंत के पहले रोज किस तरह महफूज रहे, जानते हैं अपने नुमाइंदा ताहिर जाफरी से। जी ताहिर जाफरी, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या जोशो खरोश है अवाम का? एक मेगा इवेंट बिलाशुबा बसंत का एक रात को बड़ा चांद रात लोगों ने महसूस हुए शहरी लाहौर से और बसंत को महसूस होते रहे। और ये इस वक्त अब ये लाहौर शहर की पहला दिन है बसंत का। और इस वक्त अब तो कुछ देर कबल लाहौर शहरियों ने जो है वो नाश्ता किया, नाश्ता करके अब जुम्मा की नमाज़ पढ़ी जाएगी और एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बार फिर हल्ला गुल्ला शुरू होगा। इस वक्त हम लाहौर की एक तारीखी हवेली में मौजूद है जहाँ रात भर बसंत होती रही है। बसंत में लाहौर शहर के जिंदा दिलाने लाहौर ने खूब इंजॉय किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। हमारे लिए ये एक ट्रेडिशनल है, लाहौर की एक सकाफत है जिसको हम मना रहे हैं और मेरे लिए एक नया एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम उन नौजवानों से जो SOPs हुकूमत ने दी उनको प्लीज़ लाजमी फॉलो करें। और ये त्यौहार ऐसा लग रहा है जैसे ईद का त्यौहार है। हम फुल इंजॉयमेंट के मूड में और हमने 3 डेज फुल इंजॉयमेंट करनी है, हल्ला गुल्ला करना है, खाबे खाने हैं और पतंगबाजी करनी है, पेचे लड़ाने हैं, गुड़ियाँ बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट्स करनी है। यही बात थी कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर हम SOPs पर अमल दरामद करते हैं और आज़ादी दौर का इस्तेमाल नहीं करते, तमाम कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं तो फिर एक ऐसी बसंत है कि जिसका वाकई रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में 25 साल बाद। जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर इसमें लोगों की जानें नहीं जाती, महफूज रहती है बसंत, तो जो शहरी अपना जिम्मेदारी से किरदार अदा करते हैं। जैसे कि पंजाब भर में फ्री ट्रांसपोर्ट दी गई है, वहाँ पर फ्री ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, फ्री रिक्शा सर्विस दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लोग रिक्शा सर्विस इस्तेमाल करते हैं। दफ़ा 144 की पाबंदी को यकीनी बनाते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते, दाती दौर का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ये बसंत वाकई पंजाब में रिवाइव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ताहिर जाफरी, आप महफूज रहिए, महजूज होइए बसंत के इस त्यौहार पर और बसंत के रंग जिंदा दिलाने लाहौर के संग जहां 2 दिहाइयों बाद बसंत का मेला सजा है। जी हाँ, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज किया। SOPs के मुताबिक गुड़ियाँ उड़ाना शुरू कर दी। लाहौर की फजा बो काटा से गूंजने लगी। आसमान पर पतंगों की बहार, बच्चे बड़े सब छतों पर मौजूद। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जा रहा है। पूरे शहर में जश्न का समा, फजाओं में बसंत का जुनून, लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाजारों में आवाम का रश, शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। तीनों दिन शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट, बसें, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और रिक्शे बिला मुआवजा दस्तयाब होंगे। मोहम्मद सुफियान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। सुफियान, बताइएगा, सेलिब्रेट कर रहे हैं बसंत को लाहौरी? जी, बड़े शानदार अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात 12 बजे से पतंगबाजी का आगाज हो गया था। हम रात से देख रहे हैं कि छतों के ऊपर लाइटें लगाई गई और फैमिलीज, बच्चों ने बहुत इंजॉय करना शुरू किया रात 12 बजे से। और SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। लाहौर का मौसम भी बहार की आमद का मौसम है। इस वक्त बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। इससे पहले रात भी बहुत खूबसूरत मौसम रहा, हवा भी बड़ी शानदार रही पतंगबाजी के लिए। तो हमने देखा है कि लाहौरी बड़े खुश हो के बड़े अच्छे अंदाज से इस त्यौहार को मना रहे हैं। एहतियात के साथ महफूज बसंत मनाई जा रही है, जबकि सर्वेलेंस भी बहुत पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ी बेहतरीन की जा रही है। ड्रोन कैमरास के जरिए सर्वेलेंस की जा रही है। जहां कहीं पे SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है निहायत मोहतात अंदाज में बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये 3 रोजा बसंत जो है ये लाहौरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। यकीनन 2 दिहाइयों के बाद, एक तवील इंतजार के बाद लाहौरियों को दोबारा बसंत मनाने का मौका दिया गया है, जिस पर
لاہوریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سفیان، پنجاب حکومت بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہوری صرف پتنگ نہیں اڑا رہے، لاہور کو صرف دلہن کی طرح سجایا نہیں گیا، روایتی کھانے، ثقافت کو اجاگر کرنا، میوزیکل شوز، وہیں پر گڈی لوٹنا بھی ایک روایت رہی ہے۔ جی بالکل، گڈی لوٹنا اور گڈی اڑانا یہ ان دونوں میں ایک ہی طرح کا مزہ ہے لاہوریوں کے لیے۔ یقیناً گڈی کٹنے کے بعد گڈی ڈوٹنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے جو لاہوری ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے خوابوں کی بات کی تو رات 12 بجے کے بعد ہی خوابوں کا بھی لاہوریوں نے آغاز کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پہ، مختلف جگہوں پر باربیکیو کیا گیا۔ آج صبح سے ناشتے کا آغاز ہو گیا ہے، لاہوریوں نے ناشتہ کیا ہے اور اب وہ تیار ہیں دوبارہ پتنگ بازی کے لیے، اور یہ پتنگ بازی کا سلسلہ پھر رات بھر جاری رہے گا۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ساری رات یہاں پر پتنگ بازی ہوتی رہی اور 5 بجے اذانوں کے وقت جا کے لاہوریوں نے آرام کیا، اور پھر اب دوبارہ وہ پرجوش انداز میں اور ریسٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ پتنگ بازی کے لیے تیار ہے، اور اب سے یہ پتنگ بازی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ پھر ساری رات یہ میلہ لگے گا اور لاہور کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں پسند کی جا رہی ہے جو لاہور کا۔ ٹھیک، بہت 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 شکریہ محمد سفیان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور لوگ جوش و خروش کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے لاہور بسنت فیسٹیول میں شرکت کے لیے پسرور کے شہری بھی پرجوش ہیں۔ بس اڈوں پر بسنت منانے جانے والے مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا کیسر حیات۔ لاہور میں ہونے والے بسنت فیسٹیول میں جہاں ملک بھر سے لوگ بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، وہیں پسرور کے نوجوان اور فیملیز بھی خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ لاہور روانہ ہو رہی ہیں۔ بسنت کے رنگ، پتنگ بازی کا شوق اور لاہور کی ثقافتی فضا، یہی وہ کشش ہے جو پسرور کے شہریوں کو بھی اس تفریحی میلے کی جانب کھینچ رہی ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں بسنت منانے اور یہ میرے دوست ہیں ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں کافی شوق تھا کائٹ فلائنگ کا۔ بسنت لاگو کیا مریم نواز صاحب نے، انہوں کا کہے دل سے بہت زیادہ شکریہ۔ اچھا فیصلہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کہ اتنے سالوں بعد 25 سالوں بعد ہمیں بسنت منانے کا موقع مل رہا ہے۔ پسرور کے شہریوں نے بسنت منانے والے منچلوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بسنت ضرور منائیں، مگر حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ رانا کیسر حیات، پی ٹی وی نیوز، پسرور۔ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ تجارت کے وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ اور سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کے زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سرمایہ کاری کے لیے بلوچستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاشی اور تجارتی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل اور سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع رکھتا ہے اور حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات فراہم کرے گی۔ بات کرتے ہیں کچھ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، جہاں اٹک میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف سکولز کے طلباء طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ کشمیریوں کے حق میں ملی نغمے اور تقاریر بھی کی گئی۔ مقررین نے مسئلہ کشمیر کی تاریخی اور سیاسی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ تقریب کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی جو ضلع کونسل اٹک سے شروع ہو کر کچہری چوک اٹک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہر وقت بر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اللهم صل على درست ہر وقت بر وقت آپ اذان جمعہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں ہائی کمشنرز میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے حسین رضا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانہ کی جانب سے خصوصی ویبینار کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی اور بھارتی ہٹ دھرمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے خصوصی پیغامات پڑھے گئے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرنے کے لیے ہیوسٹن کے پاکستانی قونصل خانہ میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قونصل جنرل آفتاب چودھری کا کہنا تھا کہ غیر قانونی بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی پاکستان اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بیجنگ میں پاکستان کے سفارت خانے نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جموں و کشمیر ماضی اور حال کے عنوان سے سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ تقریب میں معروف چینی اسکالر پروفیسر چینگ شی یونگ نے تنازع کی تاریخی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے سفیر خالد ہاشمی نے چین کے موقف کو سراہتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور جلد حل کو خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ تقریب میں دستاویزی فلم اور فوٹو نمائش بھی پیش کی گئی۔ کینیڈا میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے دارالحکومت اوٹاوا میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم نے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا اور بھارتی مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پیرس میں پاکستان کے سفارت خانہ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا پاکستان ہر عالمی فورم پر نہتے کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ ٹوکیو میں قائم سفارت خانہ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے سفیر عبدالحمید نے کہا کہ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ایک تسلیم شدہ حق ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور دیا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔